So now let's move to the next step and let's understand that what is a startup ecosystem and support network. See, uh, for startup ecosystem or to grow in a startup ecosystem, we need to be very active. That is first thing, and we need to be very disciplined, right? And this is what I'm saying through my personal experience, right? You need to familiarize yourself with the local and global startup systems, राइट? कौन सी कंपनी स्टार्टअप थी, अभी स्टार्टअप है उस कैटेगरी में आती है, 2-3 साल हो गए, कैसा परफॉर्म कर रही है, उनके लोगों से कनेक्ट करना थ्रू लिंक्डइन और थ्रू अदर सोशल साइट्स एंड टू गेट द अंडरस्टैंडिंग, उनके पोस्ट को फॉलो करना, तो आपको समझ में आएगा कि वो डे बाय डे कैसी अपनी ग्रोथ को ट्रेजेक्टरी जा रही है, फिर उसको वेरीफाई भी करना, राइट? क्या उनको एक्सेलरेट कर रहा है, राइट? आप एक ऐसे स्पेस में जा सकते हैं कि जहाँ पे आपको समझ में आए कि ये लोग काम कैसे करते हैं। इसका क्लासिकल एक तरीका है, जैसे मैंने क्या किया था, मैं अभी भी करता हूँ, दैट आई विल गो टू कोवर्किंग स्पेस, जहाँ पे सिंगल सिंगल सीट्स होती हैं, कोवर्किंग स्पेस होते हैं, जहाँ पे कि अलग-अलग बिज़नेसेस के लोग आते हैं और वो सिंगल सिंगल सीट पे, जिनके अभी ऑफिसेज उन्होंने बड़े ऑफिसेज नहीं लिए हैं, तो दे रेंट आउट वन सीट। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे ना बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे जैसे ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो आप उनसे साथ इंटरेक्शन करते हो, आपको बिजनेस समझ में आता है, आप उनको समझते हो, इट्स वेरी हेल्पफुल। दैट काइंड ऑफ इकोसिस्टम इज वेरी वेरी हेल्पफुल। You need to understand that. So those kind of understanding, those understandings are very very important. So you have to be aware, you have to actively get into the market, you have to find out ecosystem for you, and not only to find out the ecosystem for you, you have to grow one for you, and you have to understand the other ecosystems available around you, right? And the mentorship importance, very important, yeah, very very important. मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छा मेंटोर होना ना, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। You can connect with experienced entrepreneurs. It's not I would not say that it's very easy to find a mentor, because mentor is something else. You can meet to experienced entrepreneurs and seek some guidance, but for you have to be very careful to whom you are making your mentor. You have to be very smart in that way, right? But yeah, the one way to find out a classic mentor is to meet the experienced entrepreneurs. And sometimes you meet people who are from your business interest or from your field, and then it helps you better, right? And then you can, use their guidance. And then networking opportunities you should never miss. Go to conclaves, different conclaves are happening, different categories of sessions are there, right? When you see HR conclave, IT conclave, cyber security conclave, so you have to be go there to make some networking, right? And then feedback on your business strategies, right? You have to be very open, and you should always keep your ear and eyes open when it comes to feedback to your own business strategies, especially by your mentor. And this is what I say, जो हमने लिखा भी है कि a strong mentor can drastically impact success. For sure, for sure. ये मैं पर्सनली कहता हूँ, मेरे एक मेंटोर हैं, उनका नाम मैं कभी लेना मिस नहीं करता, इस नेम इज सुधीर सिंह। ही इज माय फर्स्ट मैनेजर। जब मैंने 2011 में पहली जॉब करी थी एज एन इंटर्न, जब मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया था, वहां पे वो मेरे अपलाइन थे, मेरे बॉस के बॉस, एंड इवेंचुअली वी जेल्ड अप टुगेदर वेरी वेल। एंड उनको शायद कुछ अच्छा लगा होगा मेरे काम करने का तरीका। आई वुड से कि आई वाज ब्लेस्ड इनफ, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ही involved in couple of projects, and तब से लेकर आज तक he is my mentor. Whenever I'm stuck anywhere, I'll just reach out. He's not in India these days. He's from last couple of years. He's settled somewhere else. But whenever I need him, he's always there, just a call away. So a strong mentor can drastically impact your success for sure. And then building community, right? Engage with local startups, industry groups, which is important. We have discussed it many times. Active networking, collaborating with your peers,
Foster you see, you need to understand, I guess there is one thing which I used to do. This is one suggestion. What I used to do that when I was working now, I have created a program by the name of Learning Friday. And what we used to do that all of our team members used to sit for 1 hour. And other than work, we used to share our learnings. That somebody was interested in automobiles, they are talking about cars. Somebody would into the nature, they used to tell us about the plants. Somebody into into the wild animals, they used to tell us about the animals. Somebody into the finances. So other than work, we used to share a lot of learning. So it helped us to innovate, to create, to engage our creative thinking, right? And it helps us to engage more people into certain projects. So building community is very, very important. We have to do that. Nobody else would do it for us. We have to do that, right? We have to be very, very passionately drive all these things, right? So startup ecosystem and school networks are very, very important. And you have to understand the ecosystem, mentorship, and building community. Give emphasis to that. Challenges to anticipate. Though it is not required here, but I want to take 5 minutes to explain this slide because there are few things which is play which plays an important role for any entrepreneur. You know, because sometimes we are going with a good run rate. We are in a growth trajectory. We are doing absolutely right. Everything is going hunky dory. So we'll think that okay, everything is fine. But sometimes we uh, we forget to anticipate some challenges. वो hope for the best, prepare for the worst. हम prepare करना भूल जाते हैं worst के लिए. तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट सैचुरेशन, रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ मार्केट सैचुरेशन अर्ली ऑन. हम ना कई बार कई बिजनेसेस को हमने देखा है कि वो ना मार्केट की सैचुरेशन को अडेप्ट नहीं कर पाते. वी हैव डिस्कस दैट, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो कोडेक हो, और कि वो सैचुरेटेड हो चुकी है अब मार्केट. अब उस मार्केट में कुछ बचा नहीं है. हमको जितना जूस था हमने निचोड़ लिया, अब हमको आगे बढ़ना है. तो वो हम एंटिसिपेट नहीं कर पाते वो चैलेंज. एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू थिंक अबाउट इट. और ये पता कब होता है? ये तब होता है जब हम अपने इकोसिस्टम एक क्रिएट करते हैं, हम कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं, हमारे पास एक मेंटोर होता है. जब ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है कंपैरेटिवली मार्केट सैचुरेशन को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आते हैं, अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं. तो वहाँ पे हमारे आँख और कान अगर खुले होंगे, तो हमको पता चलेगा कि ये मार्केट सैचुरेशन है, और कहीं न कहीं हमको भी वो अंदर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दैट इज़ मस्ट, दैट शुड कम विदिन. बट अगर आप अपने आस-पास एक ऐसा इकोसिस्टम रखेंगे, ऑब्वियसली यूज़फुल. देन स्केलिंग मिस्टेक्स, कॉमन पिटफॉल्स इंक्लूडिंग ओवर एक्सटेंडिंग रिसोर्सेज, जो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि ओवर भी नहीं करना है. आपके पास नई टेक्नोलॉजी आई, आपने अडॉप्ट करी, आपने कहा चलो इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं. ज़रूरत नहीं है, आपने कर दी, तो वो ओवर स्केलिंग हो गया. अभी आपको बिज़नेस एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं थी, किसी को एक्वायर नहीं करना था, आपने कर लिया. आपके पास पैसे थे, आपने कर लिया. फिर आपको लगा कि अब तो और पैसे चाहिए, वो पैसे आपको मिल नहीं रहे हैं. इन्वेस्टर्स भी देखेंगे कि अभी ज़रूरत नहीं थी, तो आप फँस गए. तो स्केलिंग मिस्टेक्स को थोड़ा-सा, मार्केट डिमांड को आप मिसजज करने वाली जैसी चीज़ें, ये हमको एंटीसिपेट करना होता है खुद. और ये कैसे कर पाते हैं? अगेन, जब हम अवेयर होंगे. जब हमारी स्ट्रैटेजी सही होंगे, जब हम अवेयर होंगे ना, नेटवर्किंग से, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग से, हमारे पास एक इकोसिस्टम होगा हमारे आसपास जो हमने खुद डेवलप किया है, जो कि स्ट्रॉन्ग इनपुट आपको देगा, इनसाइट्स देगा मार्केट के. तो आप इन चीजों को इजीली एंटिसिपेट कर पाएंगे. एंड देन कस्टमर रिटेंशन, राइट? क्या होता है कि हम ना कस्टमर को रिटेन करना भूल जाते हैं. हम न्यू कस्टमर एक्विजिशन में इतना लग जाते हैं कई बार कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर था वो तो कहीं और जा रहा है. ये बहुत जगहों पे होता है. और वो क्यों होता है कि हम ना फोकस हमारा चला जाता है न्यू कस्टमर की तरफ, न्यू मार्केट की तरफ, और हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को शायद होता है ना ऐसे हमारे साथ कि हम कोई सर्विस यूज कर रहे हैं, तो हम क्या फीडबैक देते हैं कि पहले आप अच्छे थे. कितनी बार होता है? टेल मी ऑनेस्टली, आप बताइए कितनी बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि आप पहले बहुत अच्छे थे. हम फीडबैक भी देते हैं, मैं देता हूँ कई कंपनीज को फीडबैक, कई प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, कि यू वर डूइंग एब्सोल्युटली वेल पहले की, पर अब आपकी सर्विसेज ऐसी हो गई है.
वो क्यों होता है? क्योंकि कहीं न कहीं एज़ एन कंज्यूमर मेरे को फ़ील होता है कि नाउ वो कनेक्शन कहीं न कहीं खत्म हो रहा है। मार्केट बड़ी हो रही है, ब्रांड बड़ा हो रहा है, लेकिन वो कनेक्शन खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वो चैलेंज ही एंटीसिपेट नहीं किया एज़ एन एंटरप्रेन्योर कि हमने नई मार्केट तो कैप्चर कर ली। हम न्यू कस्टमर एक्विजिशन पे तो चले गए, लेकिन क्या हमने अपने पुराने लोगों को भी साथ में रखा हुआ है? सो दैट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम टूल्स जल्दी से जो हम हर बार करते हैं। पिच एक ऐसा टूल है, आप जाइए यहाँ पे, यू कैन डिजाइन एंड क्रिएट अच्छी प्रेजेंटेशंस, कोलैबोरेट कर सकते हो आप, और ये आपके पिच डेक बनाने में बहुत हेल्पफुल, वेरी हेल्प। स्लाइड बीम अगेन अ वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जो सिंप्लीफाइज करता है क्रिएशन को, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बना के देता है, राइट? और यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं, टेम्पलेट्स मिल सकते हैं, ऐसी बहुत सारी टूल्स हैं। मैं आपको सिर्फ ये जो टूल्स के नाम लेता हूँ, ये मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देता हूँ, और हमेशा कहता हूँ एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड गो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज, डोंट वेट। किसका वेट कर रहे हो यार? जाओ यूज करो। क्या हो गया? नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट पता तो चलेगा क्या है, सीख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट। क्रंचबेस इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स यू बिजनेस इंफॉर्मेशन। जो हम इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहे थे, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन प्राइवेट कंपनीज एंड द स्टार्टअप इकोसिस्टम। हर इको आपको इकोसिस्टम के बारे में न्यूज़, स्टार्टअप्स में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्रंचबेस। ऐसी और भी साइट्स हैं, और भी ऐसे एनालिसिस एनालिटिकल टूल्स हैं, लेकिन आप इनका यूज़ करिए। जितना ज़्यादा आप अपने बिज़नेस को ऑटोमेट करेंगे, सिम्प्लीफाई करेंगे और जितना डीप डाइव करेंगे, यू एज़ एन एंटरप्रेन्योर विल ग्रो। एंड आपने एक चीज़ नोटिस करी है सबने, डे 1 से मैं आपको क्या कह के बुला रहा हूँ? एंटरप्रेन्योर, बिकॉज़ आई बिलीव इन यू, आई एम श्योर दैट एवरी वन ऑफ यू will reach to heights. Sky is the limit for everyone for you. By this, I would like to thank you and want to wish you a very good luck for your upcoming business venture. All right. See you then, entrepreneurs. Take care.